Welcome to brand new show Face to Face. This is an initiative of DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education. DME is one of the premier institutions affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. It has three schools besides DME Media School. The other two schools are DME Law School and DME Management School. In all, we offer 4 academic programs which include BA LLB, BBA LLB, BBA and BA JMC. DME is always ready to meet with the challenges, and whatever possible is there, the institute does for the betterment of the students. When the COVID-19 struck in the month of March, we started the online classes so that the remaining course of that semester could be completed. After that, during the summers, we organized online internship for the students, and then when this semester is started, and I must tell you that the semester has already started on 4th of August, and we organized all online classes since that time. And we have converted the whole campus practically into a digital campus. Let us have a look at the digital campus of DME. DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a two-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures, and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students. Welcome back to Face to Face, and as I told you that this is an initiative of DME Media School. DME Media School is one of the top media institutions not only in the country but the entire world. We do the things with a difference, be it curricular, co-curricular or extracurricular activities. Particularly, I must make a mention of the international conference that we organize every year. This is ICANN, and ICANN 3 was held in the 3rd edition was held in the month of June only. Earlier it was slated for March, but due to COVID-19 it had to be shifted to June, and then it turned out to be the world's first digital live conference. And in this we could connect to scholars from all over the world, and then we organize every year the International Film Festival. The first edition was organized last year in April, and this year the second edition we are going to organize in the month of December. And then we also organize the BG Varghese lecture series, which has been instituted in the name of renowned journalist BG Varghese. And
every month there is a new lecture, there is a special lecture in which some very renowned person, some scholars, some industry person comes to talk to the students and interact with them. Now, talking about this face-to-face, this is an interactive program. This is a chat show wherein the dean is interacting with three students. These three students are drawn from different years. One student is from the outgoing batch since one batch is still awaiting examination, and then there is a batch which is in the third year. These are the students who have been promoted from fourth semester to fifth semester, and then there is another batch which is in the second year. These are the students who have been promoted from second semester to third semester. So in every episode there are three students, and let us have a look initially who all these three students are in this episode. So welcome back again to Face to Face. Now everybody has seen who all are there with us in this episode. So let me introduce everybody further. We have Sonal Srivastava with us, who is from the outgoing batch, and then Udit Kumar, who is from third year, and Khushi Nagpal, who is from second year. So welcome everybody in today's episode of Face to Face. And as it is customary that we start talking to the senior most person first. So initiating the discussion with Sonal. Sonal, we have seen in your AV all your interest, and we have also come to know what kind of personality you are. Otherwise, also, I and other faculty members know you well because you are always seen active in whatever is happening on the campus of DME Media School. But then let us hear from you only. What are your passions and interests? Thank you, sir, for inviting me in this conversation. Um, I like to do everything because I want to explore each and everything. ऐसे कुछ particularly नहीं है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज पसंद है. First, I thought that I would be good at writing skills, and I explored that side. Then after, in second year, it was like organizing events and just doing events, and which carried on till third year. And I feel like the best thing I can do is do events which I love, and I just love organizing it, managing it, and being part of it. But still, I mean, you must be exploring various things. You must be doing different things or participating in different activities since DME Media School organizes so many things one after another. But then definitely there must be some such thing which is closest to your heart. Closest to my heart is sir, managing things. I do different things. Like there was a time I really wanted to be a part of digital media marketing because I have that subject, and I am still doing that. I have done a certified course in that, and I love doing that. But I can't say it is the closest to my heart because I love all the things. So I would just like to say that event management is the closest to my heart.
presently it is. But then obviously in the college you did not have much choices, except if the students take a lead in organizing something, then you can decide the things as per your choice. But then if it is for the college to decide what all is happening and you are simply part of the whole team and all, but then given the choice, what kind of event or events on what subjects you would prefer to be part of them? Sir, it could be anything. There is nothing like a particular, but it can be anything. Like I just want to explore things, whatever comes in my way. I just love to explore that. Okay. And I mean, what about your reading, writing, or music, or sport, anything in which you are Uh, inclined? Sir, I used to love writing. I have been part of Times of India for a particular period of time as an intern, and I used to write in the department known as News and Education Department, where I've written about school students, entertainment, and everything. And then I was part of our newsletter also for a certain period of time. And talking about music and all the things, I love listening to music, but I'm a bit old school in that. For me, old is gold. So I love listening to old music, like 90s and 80s. Old music means I what? I love mean, them. So old music means, I mean, the old films, songs of Hindi films or yes, what? sir. Yes, sir. Old film, Hindi songs, Hmm. Bollywood basically, old Hindi songs. I love listening to them. Okay, which, I mean, who is the singer? I mean, who is very close to you? I mean, as far as singing style or is concerned? Sir, I very much like Lata Mangeshkar ji. I love her Hmm. songs. I love Atif Aslam songs. And there are so many, but particularly I really like Lata Mangeshkar ji songs. So you simply listen to, you never sing. No, no, no. I only listen. I'm terrible at singing. Okay. Now, I mean, about the events again, I mean, since you are too much into events and again, you are emphasizing that you are most interested into that. So what kind of events you participated in DME Media School? Can you tell us something about that? Sir, I am being introduced to events because of you. Thanks for thanking you for giving me that opportunity to organize and be a part of SIFI. So SIFI was the main and the most important event of my college life, and I have learned a lot from that. The I have just not learned how to organize an event. I have learned more things than that. I have learned how to communicate to people, how to do things in a very small period of time, but delivering the quality amount to the audience and doing everything behind the stage. It is मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको दिख रहा है सिर्फ वही हो रहा है जो पीछे की मेहनत होती है that is also very important and I have learned each and every aspect of it in SIFI only and that was the one of the most major events I have been participated in and been part of that. So, I mean, if I ask you to say it one line, what was your takeaway from SIFI? A lot. Most important, the confidence I have gained. The confidence I have today in myself is because of SIFI. Because I have interacted to so many people, and thanks to SIFI, so many people know me now in our college only. So that is one of the most important thing I have taken away from SIFI. That is my confidence. So moving on to Udit. Udit, you have been there in DME Media School for last 2 years. And during this time, you also have participated, as we all know, that you are also very active and participating in so many things. But then when it comes to the closest thing to your heart, what would you tell us? सर खास करके मेरा एक्सपीरियंस बाकी बच्चों से थोड़ा अलग रहा है क्योंकि पहले तो मैं झारखंड में हूँ और झारखंड में ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती तभी मैं बाहर गया था पढ़ने के लिए जब मैं बाहर आया खास करके डीएमई में आया तो मेरे लिए चीजें थोड़ी बदली हुई थी और कहीं ना कहीं मुझे अडॉप्ट करने में भी टाइम लगा चीजों को और जब धीरे धीरे मैंने आपको देखा पहले तो बाला मैम की नाम लूंगा मैं क्योंकि बाला मैम ने काफी सपोर्ट किया है
क्योंकि आप डीन हो तो थोड़ा सा शुरुआत में डर लगता था कुछ भी बोलने से, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो बाला मैम से बात करना, उनका सपोर्ट करना, चीजों को समझाना, कोई दिक्कत हो तो मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एचओडी मैम है क्या सोचेंगी, जाकर सीधे बोल देता था। ये बचकाना हरकत था, लेकिन मैम कभी माइंड नहीं की इन सारी चीजों को, बहुत अच्छे से सुनी। और मुझे एक पार्ट बहुत अच्छा लगा कि डीएमई में आज तक मुझे जितने भी दिन हुए, कोई भी मंथ चल जाए तो 2 मंथ के अंदर एक ना एक इवेंट होता ही होता है। मतलब अगर मीडिया स्कूल में ना हो तो कॉलेज से हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता ही है। और जहां तक मैं डिबेटिक सोसाइटी का स्टूडेंट कन्वीनर इस साल से हूँ, मेरे एक्सपीरियंस उसमें भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि एक इवेंट को देखना और उसको करवाना और उसके पीछे की मेहनत को देखना, समझना और हैंडल करना बहुत बड़ी चीज है। हमें कई बार लगता है ये तो छोटी सी चीज है, इसमें क्या ही मेहनत है। हम लोगों की जो मेहनत होती है उसे जज कर लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन जब आप धरातल पे उतरते हो, उस चीज को करते हो, तो आपको पता चलता है हाँ भाई काफी चीजें हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें काफी मेहनत है और उनका नाम कभी कहीं नहीं आता। तो जब मैं उन चीजों में पार्ट लिया, जाना चीजों को, तो मुझे रियल में उन लोगों की वैल्यू समझ में आई जो सही में कैमरा के पीछे भी रह के, जो कभी किसी को नहीं पता चलता, उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है हर चीज को कराने में। तो बहुत सारी चीज सीखने को मिला। दिल्ली में जाने के बाद कई सारे डिबेट में भी, जैसे कि बाला मैम ने अनुगुंज में भेजा था, अनुगुंज के प्रीलिम्स में भी जीता, अनुगुंज में भी 2 बार जा चुका हूँ। तो वो सारी भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही। मतलब मुझे कभी बीजेएमसी लेने के बाद ना एक भी बार ये नहीं सोचना पड़ा कि शायद मैं इससे बेहतर कुछ और कर सकता था, क्योंकि एक टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं डीयू में पॉलिटिकल साइंस कर लूं या बीजेएमसी कर लूं। तो मेरा डिसीजन बेस्ट रहा, क्योंकि आज भी इतने साल हो गए, आज भी मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मेरे पास एक और ऑप्शन था। और कहीं ना कहीं टीचर्स के पढ़ाने के तरीके, एक पारुल मैम थी जो चली गई है, अभी एमईटी में पढ़ाती है, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। फिर प्रमोद सर है, 2-4 ऐसे टीचर है ना जिनको सुनने के बाद मतलब 3 घंटा भी लगातार सुन लो ना तो कभी बोर हुआ ही नहीं जा सकता। मैं प्रमोद सर को भी ये बात बोलता हूँ कि सर आप जब पढ़ाते हो अलग ही मजा आता है। फिर अभी मनमीत मैम है, मीडिया रिसर्च में पढ़ाती है, इतना मजा आता है। अभी उधर पहले हम तुम्हारे ही बारे में बात करते हैं, बाद में टीचर्स के बारे में बात कर लेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे तुमने डिबेट की बात की, तो तुम्हारा सबसे ज्यादा जो मन लगता है या सबसे ज्यादा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो डिबेट करना है, या उसके अलावा भी और कोई ऐसा एरिया है जो तुम्हें बहुत पसंद है? सर मुझे तो अगर इवेंट और ये सारी चीजों के बारे में बोले तो डिबेट ही पसंद है। कई बार मैं डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ, लेकिन डिबेट सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। नहीं, मैंने तो तुमको कई बार और एक्टिविटीज में, जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदी दिवस की, या कविता बोलते हुए, या कुछ और बोलते, मतलब काफी वर्सेटाइल चीजों में भी तुम्हें अलग अलग तरह की चीजों में भी देखा है। जी सर मेरी हमेशा ये प्रयास होती है कि हर जगह पे एक एक्सपीरियंस लिया जाए, चीजों को समझा जाए और उससे कुछ सीख लो। लेकिन अगर पर्सनली देखा जाए तो मुझे डिबेट से प्यार है। किस तरह के टॉपिक्स पे तुम्हें डिबेट बोलना अच्छा लगता है? सर मैं कभी जातिवाद मुद्दे पे तो बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मुझे जो करंट प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अभी आज का जो आपने ग्रुप बनाया है जिसमें न्यूज़पेपर आ रही है, उसमें मैंने खोला था तो आपने शायद या बाला मैम ने एक डाटा भेजा था कि जीडीपी कैसे डाउन हुई, और चाइना की जीडीपी 3% अप है, स्टिल अभी भी अप है, और बाकी सारी डाउन हो गई और इंडिया तो सबसे नीचे था। तो ऐसे टॉपिक्स में कि क्या हो सकता था, कैसे हम सुधार सकते थे, जो चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि मुझे और हम जैसे यूथ और साथ ही साथ देश को भी कुछ प्रॉफिट हो, ऐसे टॉपिक पे बात करना और उस पर एक निष्कर्ष निकालना मुझे काफी अच्छा लगता है। चलो, तुमने जो कहा वहीं से मैं ट्रेस करता हूँ। अगर सपोज आज ये डिबेट ऑर्गेनाइज हो कि कोविड-19 पीरियड में भारत की अर्थव्यवस्था को गिरने के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है, तो तुम इसके पक्ष में बोलोगे कि विपक्ष में बोलोगे? सर मैं विपक्ष में बोलूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ इसके विपक्ष में बोलने के लिए। जी सर मेरा मानना है कि जो भी चीज है, पहले तो किसी को अनुमान था नहीं कि ऐसा कुछ होगा, हालांकि हमें थोड़ा पहले बताया गया, हम संभले भी। अमेरिका की जैसे हमने लापरवाही तो नहीं किया एटलीस्ट। तो पॉइंट ये आता है कि अगर सरकार जिम्मेदार है तो हमें समझना होगा कि उस टाइम की सिचुएशन क्या थी और आज की सिचुएशन क्या है। एक चीज आप गौर करना कि जो हमारी सरकार है, हर एक
वीक के हिसाब से उसे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मार्च के, जब होली के बाद कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए थे, होली के बाद वाले जो वीक आई थी उसमें कैसे डिसीजन लिया गया, उसके बाद कैसे हमारे लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया। मोदी जी ने एक बात बोला था कि ये थाली बजाओ, ये करो, वो करो। एक्चुअली लोगों ने उसके मजाक भी उड़ाए, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का ये एम था कि एकता दिखे, और उनके जैसा लीडर तो मैं इस चीज में, मुझे लगा ही नहीं था कि चलो, तुम्हारा एक मिनट मिनट का समय समाप्त हो गया, और मैंने तुम्हें 1 मिनट का समय दिया था जो तुमने भूमिका बनाने में लगा दिया। अगर 1 मिनट का समय, तो 1 मिनट में भी तुम्हें 4-5 बहुत ही धारदार पॉइंट्स रख देने चाहिए थे, जो तुम भूमिका बनाने में फंस गए। और चलो ठीक है, अब तुमको लगा कि 2-3 मिनट में ही तुम 1 मिनट में भूमिका बनाते, दूसरे में थोड़ा तर्क रखते तो शायद संभव था। चलो ठीक है, आगे तुमसे बात करते हैं। मूविंग ऑन टू खुशी। Kushi, as you have been listening to your seniors, now if I ask the same question to you and asking about your passion and interest, what will you tell us? Thank you, sir, for giving this opportunity. First of all, sir, I like to read books. Means मैं अपना पूरा दिन books पढ़कर निकाल सकती हूँ. Apart from that, I like to paint. Not actually paint, मुझे craft करना भी बहुत पसंद है, और मुझे क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट है। मतलब ये 3 चीजें मैं दिन में ज्यादातर यही करती हूँ। तो बुक्स में मुझे काफी सारे राइटर्स काफी पसंद है। रस्किन बॉन्ड के वर्क्स बहुत अच्छे हैं, मुराकामी के वर्क्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं ज्यादातर टाइम बुक्स पढ़ने में, या फिर मुझे नॉलेज की बुक्स पढ़ना भी बहुत पसंद है। मैं जनरल नॉलेज का कुछ पढ़ती रहती हूँ। तो सर यही सब, मुझे बुक्स और पेंटिंग में काफी इंटरेस्ट है। पेंटिंग में क्या करती हो? सब पेंटिंग में मैं डूडल्स मुझे बनाने काफी अच्छे लगते हैं, मंडाला मुझे थोड़ी बहुत आती है, और सर मैं क्विलिंग भी काफी कर लेती हूँ। तो यही सब है। मैंने लॉकडाउन में काफी कुछ नया सीखा पेंटिंग की फील्ड में सर। तो सर यही है, मैं थ्रेड वर्क से भी काफी कुछ बना लेती हूँ। तो क्या बनाया अभी रिसेंटली तुमने? सर मैंने अभी मंडाला के कुछ बनाया, और क्विलिंग से एक मैंने बॉक्स बनाया था, तो वो काफी अच्छा बना था। वो रिसेंटली मैंने सबसे अभी यही बनाया। तो कहाँ रखे हैं बना के वो तुमने? तो वो तो अभी दूसरे रूम में रखे हैं, मैं आपको एंड में दिखा सकती हूँ सर। लेकिन ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे निश्चित रूप से। तुमने क्रिकेट की बात की, तो ये लॉकडाउन में तो क्रिकेट बंद हो गया, जितने स्पोर्ट्स चैनल्स हैं वो भी पुराने मैचेस दिखा रहे हैं। तो यू वुड हैव गॉन बोर्ड, क्योंकि बिना क्रिकेट देखे पे तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। तो क्या करती थी, क्या कर रही थी? तो अच्छा, वो टाइम तुमने पेंटिंग बनाने में निकाल दिया? यस सर, मैंने इस लॉकडाउन में पेंटिंग ही सबसे ज्यादा करी है अलॉन्ग विद बुक्स। तो सर क्योंकि क्रिकेट तो नहीं था, तो वो टाइम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना था, और थोड़ा बहुत कुकिंग में बहुत कम, लेकिन उसमें भी थोड़ा मैंने अपना हाथ ट्राई कर देखा कि क्या कर क्या नहीं। तो सर क्रिकेट तो नहीं था, कुछ और मैंने ट्राई करने की कोशिश करी। फिर क्रिकेट नॉर्मली जो है कि इट इज कंसीडर्ड ए मेंस गेम, और लड़कियों का उतना इंटरेस्ट होता नहीं। तो तुम्हारा कहाँ से इंटरेस्ट जनरेट हुआ क्रिकेट में? सर मुझे स्पोर्ट्स में हमेशा से इंटरेस्ट था। मैं 9th से 12th तक मैंने खुद भी एथलेटिक्स बहुत खेला है, और जैसे प्रैक्टिस वगैरह होती थी तो मुझे क्रिकेट देखना, बाकी स्पोर्ट्स में भी मुझे काफी इंटरेस्ट है। तो सर मेरा बचपन से खेलने में और देखने में दोनों में इंटरेस्ट रहा है। तो और सर मेरे भाई का भी सेम इंटरेस्ट है, तो हम दोनों हर टाइम ये करते हैं, स्पोर्ट्स की बातें, क्रिकेट हो गया। तो सर इसी वजह से मेरा बचपन से हमेशा इंटरेस्ट रहा है। तो अभी तुम कुछ खेलती नहीं हो? सर अभी मैं रिसेंटली मैंने जैवलिन थ्रो में खेलती थी जब मैं 11th में थी। सर फिर मेरे शोल्डर में थोड़ी इंजरी हो गई थी, और मेरी बॉडी काफी वेट लूज करने लगी, तो फिर मुझे छोड़ दिया था मैंने। तो अभी क्योंकि फिर बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी डाइट वगैरह के साथ। सो अभी तो क्रिकेट फिर से शुरू हो रहा है, तुम्हें पता ही होगा। सो which tournament is happening shortly? सर IPL is going to begin on September 19 in Dubai. तो सर उसके लिए भी काफी एक्साइटेड है, बहुत टाइम बाद लाइव क्रिकेट आएगा, तो अभी मेन फोकस तो उसी पर है। Okay, can you tell me something about IPL? I mean this IPL? सर दिस IPL सर अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। 8 टीम्स इस बार दुबई में हो रहा है, क्योंकि दुबई के कंडीशन फिर भी इंडिया से बेटर है। तो अभी फिर जब टीम्स गई थी तो उन्हें थोड़ा टाइम क्वारंटाइन रहना पड़ा था। अभी सबके नेट सेशंस वगैरह स्टार्ट हो गए, तो भैया अब 19 को पहला मैच है RCB का। सर मेरी फेवरेट टीम, मैं RCB को सपोर्ट करती हूँ। तो फिर सर यही है कि मींस मुझे बाकी सब क्यों फेवरेट टीम RCB क्यों है? सर मुझे मींस AB डिविलियर्स और
विराट कोहली काफी पसंद है, उन दोनों का गेम कुछ नेक्स्ट लेवल है अगर देखा जाए तो, बाकी सब बैट्समैन से कंपेयर करा जाए तो। और सर फिर मैं सेकंड नंबर पे सीएसके को काफी सपोर्ट करती हूँ बिकॉज ऑफ एमएस धोनी। तो सर वो कुछ क्वालिटी गेम की वजह से इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट। तो डिविलियर्स के गेम में क्या तुम्हें ऐसी खास बात दिखाई देती है जो तुम्हें इतनी पसंद है? सर उसका जो शॉट्स खेलता है ना, मीन्स जिस बॉल पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस पर भी रन आ सकते हैं, वो सर उस पर भी शॉट हिट कर देता है। और मीन्स जैसे उसकी प्लानिंग काफी अच्छी है बिटवीन द विकेट्स और शॉट्स में, तो सर इसलिए मुझे डिविलियर्स का गेम काफी इंप्रेसिव लगता अच्छा, और धोनी के खेल में क्या खास बात लगती है? है। सर स्ट्रैटेजी, मीन्स अगर मीन्स वो हमेशा से अपनी स्ट्रैटेजी के लिए ज्यादा फेमस थे, बेस्ट कैप्टन फॉर श्योर। तो सर जिस तरह से वो विकेट के पीछे सबको गाइड करते थे, बॉलर्स को भी किधर से बॉल करना है, कैसे करना है, तो सर इस वजह से मीन्स वन ऑफ द बेस्ट माइंड गेम्स वी हैव प्लेड इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। जहाँ पे तुम लेकिन अब तो वो कैप्टन है नहीं, कैप्टनसी मतलब ही हैज टेकन दिस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अभी तो आईपीएल में ही खेल रहा है, तो वो स्ट्रेटेजी तो उसकी नहीं चलेगी। ही विल बी प्लेइंग सिंपली एज अ प्लेयर लाइक अदर प्लेयर्स, isn't सर it? कैप्टनसी तो उन्होंने बहुत पहले गिव अप कर दी थी, लेकिन जैसे सब प्लेयर्स कहते हैं कि उनका फील्ड पर होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत गाइडेंस देते ही रहते हैं। तो सर अभी सीएसके पे तो कैप्टन है, वही देखते हैं, बाकी तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वो तो सर सबको लेना पड़ता है फिर, यही है। गुड, लेकिन अच्छी बात तुमने बताई कि लीडर इज ऑलवेज लीडर, सो इवन इफ ही Yes, इज sir. देयर ऑन द फील्ड एज अ प्लेयर, दैट मैटर्स. That's Yes, really sir. good takeaway what you said. So moving on to Sonal, what Khushi said, taking a clue from that, since you have been active in so many things, and then can you tell us how that leadership thing has been contributing to whatever you have been doing in DME Media School? सर काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है लीडरशिप एंड ऑल दैट, क्योंकि एक जो होता है ना कि आप अपना टीम को अपने साथ लेके चलते हो। अगर इवन इफ देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन योर टीम और वो सारे अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बिग ब्लंडर। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी टीम को लेके चलना पड़ेगा, एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन्स थॉट, या जो भी उनका परसेप्शन है आपको वो सुनना पड़ेगा, एंड यू नीड टू एक्नॉलेज दैट। आपको उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उन्हें सुनना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ काम कर सकते हैं किसी चीज के लिए, वरना सब बैंड बच जाएगी इवेंट की एंड में। Okay, so if I ask you about your friends and your connection, your relationship with teachers, and the fun moments during your stay of 3 years in DME Media School, what will you tell us? Sir, I have a long list. Yeah, you are welcome to narrate all that long list. So first of all, Bala ma'am, she is a sweetheart. I was a student of evening batch, and trust me, वो एक ख्याल कि यार हम लोग इवनिंग बैच के हैं, we would not be considered as that important and all, and we were the first batch of evening batch SADME में। बट जिस तरीके से बाला मैम ने हमें हैंडल करा है, she made sure कि हम हर इवेंट का पार्ट हों, कि मतलब उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कुछ चीज ए और बी सेक्शन अगर कर रहा है या वो आगे है तो सी सेक्शन नहीं होगा। she made sure कि हम हर चीज में हों, तो बिग थैंक्स टू हर, उन्होंने हमें हर चीज में आगे रखा। उसके बाद फर्स्ट ईयर में दीपिका मैम, she was a very good support system for me because I lost my dad in first year final exams paper, and she was a very big support, she and Bala ma'am. And then Sanjita ma'am, she was my mentor for 2 years. Harjeet sir, उन्होंने जितना मोटिवेट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करा है थ्रू हिज असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, दैट वाज वेरी वंडरफुल. And I can't just end this without thanking Manmeet ma'am. Manmeet ma'am and Harjeet sir were very main and important part during the city. जैसे उन्होंने समझाया, मोटिवेट करा, हर चीज को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हर स्टेप पे they were there. So, yeah, these faculties, मतलब our college has the best faculty, I can say that, and they know each and everyone so personally.
और ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आप जाकर अपनी प्रॉब्लम किसी भी फैकल्टी के आगे रखोगे तो वो बोलेगी दे डोंट हैव टाइम या बाद में बात करेंगे कुछ. दे विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू नो मैटर व्हाट हैपन. लिस्ट खत्म हो गई तुम्हारी? अभी तो तुम फ्रेंड्स के बारे में भी बताने वाली थी. हाँ फ्रेंड्स सर बहुत सारे हैं. आई हैव मतलब बहुत बड़ा bunch of friends, but the one who are really close to me are Charu, Rohit, Praveen, from my juniors, Yukta. Whole DME knows that Yukta is very close to me. Shivam and Kushagrita, Karan, they are really close to me. और मस्ती तो हमने बहुत सारी करी है. हमने काफी सारे मास्क बंक भी करे हैं. I should not add this, but these were the memories I'm going to take with me forever. Mass bunk and the after event मस्ती जो हम बाला मैम से प्लीड करते थे कि मैम 1 घंटे दीजिए और या 1 घंटे और मस्ती करने दीजिए. So these all are a very good memories I have. तो तुम्हारा सबसे जो चेरिश्ड मोमेंट है जो तुम अब 3 साल तो तुम्हारे हो गए जो अपने साथ हमेशा रखोगी, that is about bunking classes? No. The best moment for me personally was जब आपने सीसी के लास्ट डे जब सब खत्म हो गया था, जब सब जा रहे थे और in front of the reception आपने हमें acknowledge करा that we have done a really good job and हमने आपको let down नहीं करा. That is the best moment जो मेरे साथ हमेशा रहेगा. Because मुझे बहुत डर था आपका कि मतलब आई डोंट वांट कि सर लेट डाउन हो या कुछ भी हो या हमारी वजह से कोई ब्लंडर हो. एंड ऑल द डेज ऑफ व्हेन सिटी वाज टेकिंग प्लेस एंड सिटी वाज हैपनिंग, हम बस यही कर रहे थे कि सर को कोई ऐसे ना लगे कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी. द बेस्ट पार्ट वाज दैट जब आपने एक्नॉलेज करा. एंड आई केम स्माइलिंग होम एंड सेइंग कि मम्मी अमरीश सर ने मुझे एक्नॉलेज करा एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट. No doubt. I mean, this I can say on this platform as well. You did very well, and the entire team which was working with you, and that is how I asked that question about leadership. You have all those leadership qualities wherein you can lead a team and can get the things done. So that quality you have no doubt. Okay, so moving on to Udit. Udit, you were already telling us about teachers, but then if I further ask you the same question, if you can tell us something about your friends, teachers, and the moments in the college. सर मैं लास्ट टाइम मनमीत मैम की बात कर रहा था. सर अभी वो हमें मीडिया रिसर्च की पेपर पढ़ा रहे हैं. मैं काफी डरा हुआ था जब मैंने मीडिया रिसर्च सुना. मतलब नाम से ही थोड़ा सा डर सा लगता है भाई. रिसर्च हमें कोई आइडिया नहीं होता कि क्या करना होगा. पहली क्लास में आपको भी बोला था कि सर मुझे इस पेपर में बहुत डर लग रहा है. आपने भी बोला था कि ऐसी कोई बात नहीं है, चीजों को समझते जाओ, होगा. लेकिन फिर भी घबराया हुआ था. और कहीं ना कहीं एक टीचर से ज्यादा हम खुलकर बोल पाते हैं और आपसे थोड़ा मेरे साथ लगता है कि कैसे कुछ बोल दे. तो मनमीत मैम ने पहला क्लास लिया, मैंने सेम बात उन्हें बोला. मैम ने भरोसा दिलाया कि बहुत आसान हो जाएगा, बस टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाती जाती हूँ, उसे पढ़ते जाओ पढ़ने के बाद. और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोचते जाए. जो चीज मैम ने बताया उसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है. और मैम ने जैसे पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाने के बाद हर टॉपिक को समझना मेरे लिए काफी आसान हो गया. तो अभी तक इस सेमेस्टर में देखा जाए तो ये ऑनलाइन थोड़ा सा मेरे लिए ऑनलाइन स्टडी टफ रहा था. लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया बड़ा सही रहा. और जब मैं बात करूं कामिल सर की, तो सर कामिल सर ने बहुत हेल्प किया मुझे फर्स्ट ईयर से ही. सर काफी सपोर्टिव रहे हैं. उन्होंने मुझे राइटिंग टीम में भी न्यूज़लेटर वाले में लिया था. हिंदी के कुछ आर्टिकल्स मैंने भी लिख के सर को दिया था. तो सर ने हमेशा बताया है गलतियां कि कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ पे सही हो. तो सर चीजें बहुत अच्छी रही मेरे लिए. और अगर बात करूं मैं बाला मैम की, जिनको मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ. सर उन्होंने लिटरली मुझे झेला है. सर आप हो यहाँ पे? हाँ बोलो सुन रही है बाला मैम. हाँ अच्छा मैम है यहाँ पे. अच्छा अगर मैं बात करूं बाला मैम के बारे, तो लिटरली उन्होंने झेला है. मतलब मेरी हरकतें ही ऐसी होती थी, मतलब बचकानी वाली. ना चाहते हुए भी मेरे से हर बार गलती हो जाती थी. अगर मेरी माँ भी खुद होती ना तो इतनी गलतियों के बाद 1-2 लाफे तो पड़ जाते.
मैम ने हर बार गुस्साती थी, लेकिन मुझे पता होता था ये गुस्से के पीछे एक प्यार छुपा है, जो मैम हर बार समझाना चाहती कि नहीं उदित ऐसे नहीं, ऐसे करो। और किसी को कुछ लगे ना लगे, मैम ने हमेशा से बोला है नहीं तुम कुछ कर सकते हो। और ये एक बहुत बड़ा मैटर कर जाता है एक बच्चे की लाइफ में कि उसके टीचर्स चीजों को इस तरीके से समझाएं और ऐसे बोले कि नहीं हाँ तुम कुछ कर सकते हो। अगर बंदा 10% भी कर सकता है और उसे ऐसे बताया जाए तो बंदा कम से कम 60-70% के एफर्ट मार जाता है ऐसे ही। लेकिन उदय तुमने थोड़ा एक रिस्की काम कर दिया आज। तुमने ये बोल दिया, बाला मैम ने सुन भी लिया, अभी 1 साल हो तुम तो 1-2 लाफे अब तुम्हें लगने ही वाले हैं इसका मतलब। सर मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि बाला मैम भी सुन रही है, और अगर मैंने बोल दिया तो लिटरली मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे पता है ना। तो कोई नहीं सर, मैम लगा भी देंगी तो बच्चा ही हूँ उनका। चलो, now moving on to Khushi. Khushi, what will you tell us about your friends, teachers and your campus life? सर टीचर्स का सपोर्ट तो से रहा है, काफी टीचर्स है जो हर टाइम एनकरेज है। सर यशस्विका मैम ने काफी सपोर्ट करा है कि हाँ तुम ये बहुत अच्छा करते हो या फिर तुम्हें और भी चीजें ट्राई करनी चाहिए। सर कामिल सर ने मेरी राइटिंग पर मुझे काफी बोला है, तो उन्होंने मुझे न्यूज़लेटर में भी ऐड करा था, बिकॉज ही ऑलवेज से दैट कि तुम लिखती बहुत अच्छा हो तो तुम्हें और ट्राई करना चाहिए, तुम और इम्प्रूव कर सकते हो क्योंकि तुम रीड भी करते हो। सर टीचर्स का सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा है, और सर बाला मैम का भी काफी सपोर्ट है। मीन्स तुम गलती कर भी तो वो कभी कुछ कहती नहीं है, तो शी इज लाइक तुम तो और बेटर कर सकते हो, ट्राई करो, इस पे सेटिस्फाई मत होना। तो सर टीचर्स ने तो बहुत सपोर्ट करा है। और सर फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स काफी कम है, मीन्स 2-3 ही फ्रेंड्स है, मैं उन्हीं से ज्यादा बात करती हूँ। हमारा किसी भी चीज पर डिस्कशन नॉलेज से लेकर वैसे सर हमने एंजॉय भी बहुत करा है। तो सर ये कैंपस लाइफ तो लॉकडाउन की वजह से बाकी तो सबका वेट ही कर रहे हैं सर। 2-3 फ्रेंड्स का तुमने कहा, उनका नाम भी ले लो तो अगर वो हैं तो उन्हें अच्छा लगेगा सुन के। हाँ सर, अनीशा मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, वानी, श्रुति और मुस्कान। सर यही 4 जने हैं जिनके साथ में पूरा टाइम कॉलेज में रहती हूँ। न्यूज़लेटर के बारे में भी तुमने बताया, पहले तुम भूल गई थी पहली बार में बताने के लिए, मुझे भी याद नहीं रहा, बट देन आई हैव सीन योर रिपोर्ट्स व्हिच यू राइट फॉर द न्यूज़लेटर। You write quite well. So would you like to add something about your experience that you have been gaining while working with the newsletter of DME Media School? सर हाँ सर, न्यूज़लेटर में जैसे वो कहती हैं दीदी कि और तुम 1-2 लाइन और ऐड कर दो तो और अच्छा हो सकता है, या फिर तुम स्टार्टिंग थोड़े अलग वे से करो, और कि हेडलाइन कैसे बना सकते हैं, या फिर न्यूज़लेटर के लिए और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तुम अपने कंटेंट में क्या इम्प्रूव कर सकते हो। तो सर जब मैंने फर्स्ट ईयर में राइटिंग स्किल्स लिया था तब मुझे पता चला था कि मेरा कंटेंट है अच्छा, कि मैं उसमें और वर्क कर सकती हूँ। तो फिर तब मैंने सर के कहने पर न्यूज़लेटर ज्वाइन करा था। फिर ये ऐसा हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ लिखने के लिए आता रहता है, तो सर कुछ नया तो सीखते ही रहते हैं सर से। तो न्यूज़लेटर की टीम का तुम हिस्सा हो, तो anything since you have been associated with this whole exercise, any such thing which is very notable, which is very important when you look at the newsletter exercise, what is that one thing which you can tell us? Sir, about newsletter team? About newsletter. सर कि जिस वे में वो हेडलाइन, सर मुझे हेडलाइन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जिस वो हेडलाइंस फ्रेम होती है ना वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और बाकी सर डिजाइनिंग बहुत अच्छी है कि किस आर्टिकल पे कितना जगह देना है, तो सर न्यूज़लेटर काफी कुछ है न्यूज़लेटर में सीखने के लिए। Okay, so moving on to Sonal लेकिन मुझे again. हेडलाइन का सबसे बेस्ट लगता है कि जो भी वो हेडलाइन फॉर्म करता है सबसे अलग है। So moving on to Sonal again. Sonal, if I ask you, one unfortunate thing you already told us about your family, but then if I ask this pertinent question, this pointed question about your family, about your brothers and sisters and the support that you would have been getting from them. That's what my family is very supported. My mother is my best friend. Matlab, there is no filter in between my mother and me, and she is very supportive. उन्हें पता है कि अगर ये कर रही है तो इसका मन है तभी ये कर रही है, वरना ये नहीं कर सकती. I have one brother. He has just passed his 12th exams and he's preparing for his entrance. And talking about my father, he was always very much supportive. And he was the most happiest person जब उन्हें पता चला कि okay finally इसका entrance हो गया है and she got admission in a very nice college.
वो एक ही बार आए हैं मेरे कॉलेज एंड वो कभी मेरे स्कूल भी नहीं जाते थे, बट ही केम ओनली वंस टू द कॉलेज when the process was going on, and he was very happy to see that the campus is really nice and the faculties are very good, so he was very happy. तो तुम्हारा ब्रदर तो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करने का इरादा नहीं बना रहा? नहीं sir, he is very much into hotel management and he's preparing for that only. चलो अच्छा, फिर तुम्हारे लिए कंपटीशन नहीं होगा ना, वो he is going into another area. Exactly. Okay, so moving on to Udit. Udit, as you told us already that you belong to Jharkhand, and during this COVID-19 period, I think you are there only. So, but then if I ask you about your family, then what will you tell us? सर, मैं सबसे पहले तो अपनी माँ के बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने बचपन से मुझे इस तरह से पाला है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कोई डर होता है। मैं कभी कोई गलती करता तो किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है। एक बात हो जाती है कि एक बच्चे में और एक पेरेंट्स में एज गैप हो जाता है, तो हम बाहर वाले प्रॉब्लम पेरेंट्स को कई बार डर से भी नहीं बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा हुआ। तो मुझे इन चीजों की दिक्कत कभी नहीं हुई, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं डरूं। मुझे आज तक नहीं पता चला कि जब मुझे प्रॉब्लम होता था माँ को कैसे पता चल जाता था। जब मैं प्रॉब्लम में होता था माँ को हर बात पता चल जाती थी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिर माँ मुझसे बात करती और मैं निकल ही जाता है। अब पेरेंट्स के सामने बच्चा नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा, सारी चीजें बोल दिया जाता था। और दूसरी चीज ये है कि इन लॉकडाउन में तो लिटरली कोविड-19 मेरे लिए बहुत बेहतर रहा है। मैं अपनी लाइफ में फैमिली के साथ इतना टाइम बहुत दिनों बाद गुजारा हूँ, चीजों को सीखा। पहले था कि बाहर रहो, घर पे भी आओ छुट्टियों में तो मोबाइल चलाओ, खाना खाओ अलग और सो जाओ। मतलब घर में रहने के बावजूद मैं कभी घर में था ही नहीं, और ये चीज मुझे पहले एहसास भी नहीं हुआ था। इस लॉकडाउन में मैंने लिटरली फैमिली के साथ टाइम बिताया है। हम कैरम बोर्ड खेला करते थे, लूडो खेला करते थे, इवन हमारे घर में पासिंग द पिलो भी चलता था फैमिली में। मेरा एक छोटा भाई है, मैं हूँ, पापा है, मम्मी, 4 ही लोग। लेकिन जितना मैंने इस बार एंजॉय किया है कभी किया ही नहीं। और होने के बावजूद मैं चलो मूविंग ऑन। तो मैं यही बोल रहा था। ये सर Yeah, ठीक है उदित. Now moving on to Khushi. Khushi, I asked the same question to you. What will you tell us about your family? So my family is very supportive. Means they never force their decision on me, and they always support you whatever I want to do. कि सर अगर मुझे कुछ नया सीखना है तो इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स हेल्प करते हैं कि तुम्हें और ये ट्राई कर सकते हो या फिर मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सर मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, और सर मेरी बड़ी सिस्टर है और छोटा भाई है, तो हम एक बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं जो हर सिबलिंग करते हैं। तो सर यही है कि फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा मींस बचपन से मेरे साथ रहे। कभी मार्क्स कम भी आए तो कभी कुछ नहीं कहा, तो बहुत सपोर्टिव फैमिली है सर। I'm very thankful for that. Great that all of you have very supportive family, and this definitely matters a lot in the life of a child, and particularly it contributes significantly to the growth of a person. Now moving on again to Sonal. Sonal, now you have completed, you have played your inning in DME Media School, and the outside world is waiting for you. So what have you decided, whether you will pursue your further studies or you will take up a job somewhere? So my initial plan was to have 1 year of job experience and then after that doing my master's. But due to this pandemic, I'm thinking to do my education first and after that pursuing a job. Okay. And Udit, though you have still 1 year to go, but then you would have decided something about your career? Yes, sir. मैंने सोचा है सर, मैं सबसे पहले ग्रेजुएशन से निकलते साथ ही MBA करना चाहता हूँ। अब ट्राई तो रहेगा कि कोई IIM के ABC में से कोई ब्रांच मिले। अगर मैं 99 परसेंटाइल नहीं लाऊंगा तो मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। अगर मुझे ABC को छोड़कर भी कोई और ब्रांच मिलता है तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि IIM है तो ले लो, या तो फिर और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें देखो। लेकिन ये नहीं कि बेवकूफी में रुक जाना है, क्योंकि एट द एंड मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद आई। और BJMC में जिस तरीके से सिलेबस बनाया गया है ना सर, कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ,
लेकिन फिर भी मैं मार्केटिंग का दीवाना हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली टीचर जब ऐसे पढ़ाते हैं तो हमें सिर्फ समझ में नहीं आता, दिमाग में धंस जाता है। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं एमबीए करूंगा, और एमबीए करूंगा भी तो मार्केटिंग में। तो सर बस मैं कैट का तैयारी कर रहा हूँ। बट देन फिर पॉलिटिक्स कब ज्वाइन करोगे? सर पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा, डिबेट की जो है वो तो इंटरेस्ट वाली बात है, पॉलिटिक्स बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना। क्यों? मैं करूंगा मार्केटिंग ही। तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करके देश की सेवा नहीं करना चाहते? सर जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अपना बेहतर दे सकता हूँ, मैंने सोचा वहीं पे देते हैं। क्योंकि मैं कितना भी बोल लूं, एक होता है बोलना और एक होता है तर्क सही तरीके से बोलना। तो उस चीज को सीखने में अभी मुझे वक्त लगेगा, और जिस चीज में मैं उतना बेहतर नहीं हूँ उस चीज में जबरदस्ती घुसूं तो शायद मैं उतना सक्सेस ना हो पाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं मार्केटिंग में घुसूंगा और चीजों को सीखूंगा तो उससे जल्दी अपना करियर इधर बना पाऊंगा। ठीक है, वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। हर एक को वही करना चाहिए जो उसका दिल कहता है। Now moving on to Khushi, you have a lot of time to think, explore and decide, but still you might be having something in mind that you will do this particular thing at the end of these 3 years. सर अभी तो मेरा मीन्स यही मोटिव है कि मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन सर अभी 2 इयर्स हैं तो डिपेंड करता है किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किसी और फील्ड में। तो सर अभी मैं एक्सप्लोर ही कर रही हूँ कि और क्या अलग कर सकते हैं सर ये। लेकिन अभी मेरा मोटिव स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में है। नहीं, स्पोर्ट्स में अनडाउटेडली बहुत अच्छा करियर है, और लड़कियां स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कम जाती हैं, उसका भी तुम्हें फायदा मिल सकता है। और जो सबसे अच्छा ल्यूक्रेटिव चीजें हैं जर्नलिज्म में वो 2 ही एरिया में हैं, या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में या बिजनेस जर्नलिज्म में। बाकी ये पॉलिटिकल जर्नलिज्म हैज नो सब्सटेंस, so it's good if you have decided about that. Now we are moving towards the end of this program, and before closing I would like to thank my entire team, because this is something which was in my mind to have this kind of show, but then it would have never been possible without the support of my teachers, my faculty members. You all have praised your teachers, the teachers who have been teaching you. I have also a lot of appreciation of all the faculty members who are working with me in DME Media School, and particularly I would like to make a mention of my creative and the production team, which comprises Deepika Dhawan, Sumantra Sarthi Das and Ritik Ghosh, and after all, finally, Dr. Susmita Wala and the entire team, all the faculty members of DME Media School, I thank you all. I thank you also for making this whole interaction so interesting and lively. Thank you all. Thank you, sir. Thank you.